हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 6 करा रहा सी मैथ्स का, जिंदा नाम है ट्रायंगल। पिछले लैक्चर दे विच आपां 3 थ्योरम्स कीते सी और तीनों थ्योरम दे प्रूफ कीते सीगे। एक सी थ्योरम 6.7, थ्योरम 6.8 ते थ्योरम 6.9। तो पहला आपां रिवाइज कर लेने थ्योरम दी स्टेटमेंट्स ते एक आपां क्वेश्चन भी आंदे बेसिस ते कीता सी, जो कि थ्योरम नंबर 6.7 दे नाल हो रहा सीगा क्वेश्चन। तो सब तो पहला आपां स्टेटमेंट पढ़ते हैं थ्योरम 6.7 दी। If a perpendicular is drawn from the vertex of a right angle triangle to the hypotenuse, then the triangle on the both sides of the perpendicular are similar to the whole triangle and to each other। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਲਈਏ ਜੇ ਉਹਨੇ 90 ਡਿਗਰੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਡਰਾ ਕਰੋ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਤੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵੀ ਸਿਮਿਲਰ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕੱਲ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.8, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? In a right angle triangle, the square of the hypotenuse is equal to the sum of the square of other two sides। ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਅਗਰ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹੋਗੇ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਲੌਂਗੇਸਟ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ। ਜਿਹੜੀ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲੋਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ, ਔਰ ਜਿੰਦੇ ਉੱਤੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਬੇਸ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਓਰਮ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗਾ? ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹਨੂੰ ਹੀ ਆਪਾਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਸੋ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਈ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰੂਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਿਓਰਮ 6.7 ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਥਿਓਰਮ 6.9, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਨਵਰਸ ਆਫ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੈ? ਇਨ ਅ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ if the square of one side is equal to the square of the sum of the square of other two sides, then the angle opposite to the first side is a right triangle। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਸਪੋਜ਼ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਬਟ ਇਹ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਟ ਸਪੋਜ਼ ਇਹ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ABC, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ AB ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ BC ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ AC ਸਕੁਆਇਰ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਿਸ ਥਿਓਰਮ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਪਿਛਲੇ ਥਿਓਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 90 ਡਿਗਰੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਸ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ। ਇੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਹੈ? ਸਮ ਆਫ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਆਫ ਅਦਰ ਟੂ ਸਾਈਡਸ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? 90 ਡਿਗਰੀ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਥਿਓਰਮਸ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀ ਥਿਓਰਮ ਨੰਬਰ 6.7 ਦਾ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਟਰਾਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬੋਰਡ ਤੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਹੜੀ ਥਿਓਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਅ ਲੈਡਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ, ਲੈਡਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪੌੜੀ। ਲੈਡਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਵਾਲ such that its foot is at a distance of 2.5 meter from the wall and its top reaches a window 6 meter above the ground। Find the length of ladder। तो ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਿੰਡੋ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਵਿੰਡੋ ਹੋਗੀ ਜੋ ਕਿ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਤੇ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ ਐਟ 6 ਮੀਟਰ ਫਰੋਮ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਸਪੋਜ਼ ਇਹ A ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ B। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਲੈਡਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਲੈਡਰ ਰੱਖੀ ਆਪਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਲੈਡਰ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਦਾ ਹੈ? ਇਟ ਇਜ਼ 2.5 ਮੀਟਰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਪੁਆਇੰਟ C ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਲੈਂਥ ਦੱਸੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਡ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਅ ਲੈਡਰ ਇਜ਼ ਪਲੇਸਡ ਅਗੇਂਸਟ ਅ ਵਾਲ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲੈਡਰ ਰੱਖੀ ਹੈ ਜਿੰਦਾ ਫੁੱਟ ਟੱਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ? 2.5 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਫਰੋਮ ਅ ਵਾਲ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਡਰ ਦਾ ਫੁੱਟ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਹੈ? 2.5 ਮੀਟਰ ਅਵੇ ਹੈ। ਐਂਡ ਟੌਪ ਰੀਚਿਸ ਦ ਵਿੰਡੋ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇਹਦੀ ਟੌਪ ਹੈ ਉਹ ਵਿੰਡੋ ਨੂੰ ਰੀਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵਿਚ ਇਜ਼ 6 ਮੀਟਰ ਅਬਵ ਫਰੋਮ ਦ ਗਰਾਊਂਡ। ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਫਾਈਂਡ ਦ ਲੈਂਥ ਆਫ ਲੈਡਰ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਲੈਂਥ ਕੱਢਣੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰਲੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੀ ਖੜੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਐਂਗਲ ਤਾਂ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ 90 ਡਿਗਰੀ ਹੀ ਹੋਊਗਾ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ABC, ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਰਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ A ਕੀ ਹੈ? 90 ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ।
तो उनके अकॉर्डिंग थ्योरम 6.8 की हो जाएगी वैलिड, क्योंकि अपन थ्योरम 6.8 ਦੇ ਵਿੱਚ पता है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो तीनों थ्योरम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥ्योरम ਕਿਹੜੀ ਲੱਗੂਗੀ 6.8, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਬੇਸ ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਸਕੁਆਇਰ, ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਹਾਈਪੋਟੇਨਿਊਜ਼ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ ਕਲੀਅਰਲੀ angle A is equal to 90 degree in triangle ABC. So by theorem 6.8, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ theorem 6.8 ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਲਿਖਣੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। तो उस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज आ होगा साडा बेस ते आ होगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर मतलब AC दा स्क्वायर सॉरी AB दा स्क्वायर इज इक्वल टू AC दा स्क्वायर प्लस AB दा स्क्वायर। सानू वैल्यूज पता ने, सानू AC दी वैल्यू पता है 2.5, तो इत्थे लिखी 2.5 दा स्क्वायर प्लस इत्थे लिख देने ਆਪਾਂ 6 दा स्क्वायर। सानू पता है 6 दा स्क्वायर 36 आएगा, 25 ਦਾ 625 ਹੋਏਗਾ, बट ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ 6.25। ਆਪਾਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਆ 36 ਦੇ ਵਿੱਚ 6.25, ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 5 2 12 4, ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4225। तो 4.225 आ गई। तो ਸਾਡੇ ਕੋਲ AB ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਦੇ ਕੋਲ ਆਊਗੀ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਆਫ 422 42.25 ਮੀਟਰਸ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕੂਰੇਟ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਮੈਥਡ ਦੇ ਨਾਲ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਆ। 42.25 ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਕੁਆਇਰ ਰੂਟ ਕੱਢਣਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਪੇਅਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ 6 ਦਾ 36 ਇਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ 36 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਘਟਾਓਗੇ 42 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਬਚ ਜਾਊਗਾ 6, ਫਿਰ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡੈਸੀਮਲ ਨਾਲ ਆ ਜਾਊਗਾ 25। तो 6 ਦਾ ਡਬਲ ਕਿੰਨਾ ਆਏਗਾ 12 ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਭਰੀਏ ਕਿ 625 ਆਏ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 125 5s ਆ ਇਹਦੇ ਕਲੋਜ਼ ਆਏਗਾ, 2 5s ਆ 10 ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸੌਰੀ 5 5s ਆ 25 ਹੋ ਗਿਆ, 5 2s ਆ 10 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ 12 ਆ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ 6। तो अपने कोल कितना आ गया, सो इस चीज़ का स्क्वायर रूट कितना आ गया है 6.5। सो साडी लेंथ जी निकल आई वो कितनी निकल आई है 6.5 मीटर। तो इस तरीके नाल आपां थ्योरम 6.8 लगा के, क्योंकि मैंने पता लग गया कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिंदे विच दो साइड सन दित्तियां सी, तीसरी साइड अननोन सी जो कि एक लैडर दी लेंथ है जो कि सानू पूछी गई सीगी। तो आपां पाइथागोरस थ्योरम लगाई जो कि थ्योरम 6.8 है, उनके अकॉर्डिंग साडे कोल आ गई सी स्क्वायर रूट ऑफ 42.25। फिर आप स्क्वायर रूट मैथड जिहड़ा है आप बहुत कॉमन मैथड है, ये तुसी जूनियर क्लास दे विच पढ़िया होया है, उहदे नाल स्क्वायर रूट कड्ढिया कितना आ गया 6.5 मीटर। एंड मतलब लेंथ ऑफ लैडर कितनी आ गई 6.5 मीटर, ये साडा आंसर है। सो अगला क्वेश्चन आप ट्राई करते हैं। अगेन सानू एक फिगर दी हुई है, क्वेश्चन की है इन अ फिगर AD इज परपेंडिकुलर टू BC। तो AD BC उधर ते परपेंडिकुलर है, ताही एंगल 90 डिग्री बनाया हुआ है। प्रूव दैट AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो इत्थे सानू स्क्वायर स्क्वायर दिख रहा है, इट मीनस ऑब्वियसली एक ट्रायंगल दिख रहा है जिथे 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम नाल ही क्वेश्चन होएगा। तो आप ट्राई करते हैं। सब तो पहले सानू दिख रहा है इस ट्रायंगल दे विच आ एंगल 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है ना मतलब आप परपेंडिकुलर का काम कर रहे हैं, आप बेस का काम कर रहे हैं, तो ये हाइपोटेन्यूज। तो आप लगाने हाँ सोल्यूशन दे विच इन ट्रायंगल ADC एंगल D इक्वल टू 90 डिग्री है। अगर एक एंगल 90 डिग्री हो एक ट्रायंगल दे विच तो आप किहड़ी थ्योरम लगा सकते हैं थ्योरम 6.8 जिंदी की स्टेटमेंट की है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेन्यूज। सो आप वही थ्योरम लगा रहे हैं। तो उनके अकॉर्डिंग अपने को हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर मतलब CA का स्क्वायर किंदे कोल आ जाएगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, इनू लिख देना इक्वेशन नंबर 1। उस तो बाद हुण आपां की करते हैं, देखो अगर ये 90 डिग्री है तो ऑब्वियसली आ भी 90 डिग्री है बाय लीनियर पेयर, क्योंकि सानू पता है दोनों एंगल्स नू ऐड करके कितना बनूगा 180 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री बना रहा है तो ऑब्वियसली आ भी की बना रहा है 90 डिग्री। हुण अगर ये 90 डिग्री है उस केस दे विच अगर मैं ट्रायंगल कंसीडर करा तो इहदे बिल्कुल सामने होगा हाइपोटेन्यूज, आ होगा बेस ते आ होगा परपेंडिकुलर।
तो अगेन एक ट्राइंगल बन रहा है जिंदे विच एक एंगल 90 डिग्री है। तो थ्योरम 6.8 की कहती है कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो आप स्टार्ट करते हैं, फिर लिखते हैं इन ट्राइंगल BDA एंगल D इज इक्वल टू 90 डिग्री, देयरफॉर बाय थ्योरम 6.8 अपने को हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर किंदे को आ गया BD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर। सो इन्हें लिख दिया इक्वेशन नंबर 2। हुण देखो सानू प्रूफ की करना है, सानू चाहिए AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। AB स्क्वायर तो आ रहा बट CD स्क्वायर तो उधर है, तो आपां की करते हैं इक्वेशन नंबर 2 दे विचों पहला CD स्क्वायर की वैल्यू कढ लैंदे आ। तो CD स्क्वायर जिहड़ा आ रहा अपने कोल वो किंदे कोल आएगा CA स्क्वायर माइनस CA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। आपां की कीता इत्थों DC स्क्वायर नूं एज इत्थे रखिया, इनू उधर लै गए तो आ चीज़ बन गई। इनू कह दिंदे आ यूजिंग 1। असीं 1 नूं ही थोड़ा जिहा रीअरेंज कीता है क्योंकि मैनू चाहिए सी AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। मेरे को AB स्क्वायर की वैल्यू तो आ चुकी है, CD स्क्वायर की मैं इत्थों की वैल्यू कड्डी तो CD स्क्वायर की वैल्यू किंदे कोल आ गई CA स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। हुण आपां नूं ये दोनों एडिशन ही चाहिए, तो आपां इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं की कर दिंदे आ ऐड। तो जदों तुसीं ऐड करोगे तो इत्थे की आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस CA स्क्वायर ते नाल आऊगा प्लस AD स्क्वायर ते नाल ही आ जाएगा माइनस AD स्क्वायर। तो प्लस AD स्क्वायर और माइनस AD स्क्वायर कैंसल हो गए, साडे कोल की बच गया आ चीज़ जो कि साडा आंसर है। देखो सानू यही प्रूव करना सी AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, वही चीज़ अपने को प्रूफ हुई है। तो मैनू इस क्वेश्चन किद्दां पता लगा कि आप पाइथागोरस थ्योरम लगानी है, क्योंकि मैनू एक तो एंगल 90 डिग्री दिख रहा है प्लस मैनू कुछ स्क्वायर्स ऑफ साइड चाहिए ने। तो फटाफट पता लग गया कि जदों भी थ्योरम 6.8 लगानी है तो उनके लिए एक ट्राइंगल तो 90 डिग्री होना चाहिए, तो नालों नाल अगर एक एंगल 90 डिग्री है तो आप बोलेंगे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर किंदे कोल होएगा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। तो पहला मैं इस ट्राइंगल दे विच लगाई पाइथागोरस थ्योरम, उतों की अपने को आए कंडीशन बनी जिन्हें इक्वेशन नंबर 1 लिख दिया। फिर इदा ही आप इस ट्राइंगल के पाइथागोरस थ्योरम लगाई तो इतों भी की इक्वेशन बनी, सानू AB स्क्वायर और CD स्क्वायर दोनों को ऐड करना सी। इत्थे AB स्क्वायर की वैल्यू तो एज इट इज दिती सी, उत्थों आप CD स्क्वायर की वैल्यू कढ़ ली, फिर दोनों इक्वेशन को ऐड किया। दोनों पासे जो तुसी ऐड करोगे इत्थे आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, नाल आ जाएगा प्लस AD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर जो कि कटिया रहेगा। तो साडा प्रूफ साडे सामने। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगेन थ्योरम 6.7 या 6.8 या 6.9 की आप एप्लीकेशंस पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं कि थ्योरम इत्थे यूज होएगी। क्वेश्चन दिता है आपां नूं O इज अ पॉइंट इनसाइड अ रेक्टेंगल ABCD, सी फिगर, प्रूव दैट OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो सानू बोला गया ABCD एक रेक्टेंगल है जिंदे विच O एक इदां दा पॉइंट है सर जो कि रेक्टेंगल दे विचकार किते है। तो सानू बोला गया है कि की प्रूव करना है कि OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर किंदे कोल आए OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर दे। हुण सब तो पहला आपां नूं रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज देखनियां पैणगीਆਂ। एक रेक्टेंगल की हुंदा है, तुसीं 9th क्लास विच पढ़िया, रेक्टेंगल इज अ पैरेललोग्राम जिंदी ऑपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होंदियां ने, प्लस सारे एंगल जिहड़े ने 90 डिग्री होंदे ने। तो आपां नूं यह चीज़ पता लग गई कि आ एंगल भी 90 डिग्री है, आ भी एंगल 90 डिग्री है, ये भी एंगल 90 डिग्री है, तो ये भी एंगल 90 डिग्री है। हुण आपां लगाना सानू प्रूव की करना है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो सब तो पहला तो मैं OB स्क्वायर देखा, आ रही OB स्क्वायर किद्दां आएगा जे एक ट्राइंगल होगा। सानू पता है कि आपां पढ़ के रहे हैं, आपां ट्राइंगल्स पढ़ रहे हैं, तो इस फिगर नूं कन्वर्ट करिए किसी ना किसी तरीके नाल ट्राइंगल ली। जदों मैं ट्राइंगल विच कन्वर्ट करना है तो मैं की कीता अपने कोल एक पॉइंट ले लेना P ते Q, इत्थे इस तरीके दे पॉइंट लिखते ने सच दैट कि PQ लाइन जिहड़ी है बिल्कुल पैरेलल है इन्हां दोनों लाइन से। तो मैं इस तरीके की कंस्ट्रक्शन की है। सो कंस्ट्रक्शन आपां की कीती है, असीं लिखांगे ड्रॉ PQ पैरेलल टू AB पैरेलल टू DC
एंड PQ पास करनी चाहिए है O तो, PQ passes O। तो मैं इस तरीके की एक लाइन लीती है कि जिहड़ी PQ लाइन है पहली गल तो O तो पास करके जा रही है तो नालों नाल इन्हां दोनों लाइन्स दे पैरेलल भी है। हुण सानू पता है अगर दो लाइन्स पैरेलल होण तो इन्हां दोनों के एंगल का सम की होएगा 180 डिग्री, जिन्हों आपां की बोलते हैं को इंटीरियर पेयर। इट मीनस एंगल P प्लस एंगल A किंदे कोल होएगा 180 डिग्री। तो आप लिखांगे एंगल P प्लस एंगल A इज इक्वल टू 180 डिग्री। रीजन की लिखांगे असी को इंटीरियर पेयर। सानू पता है जो भी को इंटीरियर पेयर होन तो दोनों एंगल का सम की होएगा 180 डिग्री, बट सानू A पता है 90 डिग्री, तो एंगल P की वैल्यू देख लेने कितनी आ रही है। तो साडे कोल जिहड़ा एंगल P है वो आ गया 90 डिग्री। इट मीनस तुहाडा आ एंगल भी क्या आ गया 90 डिग्री। सिमिलरली तुहाडे कोल आ एंगल भी क्या आ जाऊगा 90 डिग्री। तो हुण आपां नूं एक ट्रायंगल दिख रहा है आ वाला, ठीक है, जिंदे विच एंगल P की है 90 डिग्री। इट मीनस एक राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। सो जो भी राइट एंगल ट्रायंगल होवे तो थ्योरम 6.8 की कहती है इन अ राइट एंगल ट्रायंगल the square of hypotenuse is equal to the sum of square of other two sides। तो आपां की करते हैं केड़ा ट्रायंगल कंसीडर करते हैं इन ट्रायंगल APO। असी लिख देंगे एंगल P is equal to 90 डिग्री। रीजन लिखांगे प्रूव्ड ऑलरेडी, जो कि मैं उत्थे कीता होया तुहाडे सामने कि एंगल P जिहड़ा है वो 90 डिग्री है। आपां कित्थों दी शुरू कीता प्रूफ ते, आपां प्रूफ स्टार्ट कीता जिंदे विच सब तो पहला मैं केड़ा ट्रायंगल लिता है APO, जिंदे विच एंगल P की है 90 डिग्री। सो बाय थ्योरम 6.8 सानू पता लग गया थ्योरम 6.8 के अकॉर्डिंग हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, क्योंकि अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो यह हाइपोटेन्यूज होगी, आ होगा बेस तो यह होगा परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, आ पॉइंट डी थोड़ा जो उत्ते शिफ्ट कर देना आ रहा पॉइंट डी। तो इनू लिख देना इक्वेशन नंबर 1। सेम तरीके दे नाल अगर मैं ये ट्रायंगल कंसीडर करा आ वाला ट्रायंगल सन दिख रहा है आ भी एंगल 90 डिग्री होगा। तो आपां की कीता सिमिलरली इन ट्रायंगल POD अगेन एंगल P जिहड़ा है 90 डिग्री है। तो इत्थे फिर थ्योरम लगेगी पाइथागोरस थ्योरम। तो DO दा स्क्वायर किंदे कोल आ जाऊगा PD स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। एनू लिख देना इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके नाल फिर मैं ट्रायंगल केड़ा कंसीडर करूंगा आ वाला, एंदे विच भी पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी। सो इन ट्रायंगल BOQ एंगल Q की है 90 डिग्री। ठीक है, इत्थे भी लिखोगे प्रूव्ड ऑलरेडी, आपां हुणे ही प्रूव किया है, क्योंकि जिद्दां इन्हां दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होएगा तो उत्थों दी P 90 डिग्री आया। इसी तरीके नाल इन्हां दोनों का सम भी क्या आएगा 180 डिग्री, जिंदे विचों B तो 90 डिग्री है, सो Q भी क्या आ गया 90 डिग्रीज। तो अगेन इत्थे फिर पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। तो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर किंदे कोल आ जाऊगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। एंड लिख देना इक्वेशन नंबर 3। इसी तरीके नाल जो मैं नीचे वाला ट्रायंगल कंसीडर करूंगा आ वाला, सानू पता है अगर ए 90 डिग्री है तो आ भी 90 डिग्री होगा बाय लीनियर पेयर। सो इन ट्रायंगल OQC अगेन एंगल Q की है 90 डिग्री। सो फिर थ्योरम लग जाएगी। तो OC स्क्वायर किंदे कोल आ जाऊगा OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। सो इनू लिख देना इक्वेशन नंबर 4। तो साडे कोल 3 इक्वेशन बन चुकियां ने। एक तो इस ट्रायंगल दे विचों एक इक्वेशन बनी है, एक इस ट्रायंगल विचों बनी है, एक इस ट्रायंगल विचों बनी है, तो एक इस ट्रायंगल विचों बनी है, जो कि तुहाडे सामने लिखिया ने। पहली इक्वेशन है AO स्क्वायर इज इक्वल टू AP स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। सेकेंड इक्वेशन है DO स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर। थर्ड इक्वेशन है अपने कोल BO स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। एंड फोर्थ इक्वेशन है OC स्क्वायर इज इक्वल टू OQ स्क्वायर प्लस QC स्क्वायर। हुण आपां देखिए सानू प्रूफ की करना है। सानू प्रूफ दे विच की चाहिए है OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो कित्थे OB स्क्वायर आ रहा OD स्क्वायर आ रहा। तो इदां करदे आ आपां 2 और 3 नू ऐड कर देने, 2 प्लस 3 करदे आ। जदों मैं 2 और 3 नू ऐड करूंगा इत्थे आ जाऊगा BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू इत्थे आ जाऊगा PD स्क्वायर
प्लस PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर ते प्लस BQ स्क्वायर। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ OD स्क्वायर वाली ਤੇ OB स्क्वायर वाली ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਆਪਾਂ ਐਡ। ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ OD स्क्वायर प्लस BO स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर जो कि ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਤਾਂ OB स्क्वायर और OD स्क्वायर ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ OA स्क्वायर ਤੇ ਨਾਲ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ OC स्क्वायर। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਦੇਖੋ PO स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ QO स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੱਢ ਕੇ फोर्थ और फर्स्ट ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਆਏਗਾ BO स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਇੱਥੇ PD स्क्वायर ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਤੇ BQ स्क्वायर ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ, ਸਿਰਫ PO स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਜਾਏਗੀ AO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ QO स्क्वायर ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੂੰਗਾ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਏਗੀ OC स्क्वायर माइनस QC स्क्वायर। तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਵੈਲਿਊ ਸਬਸਟੀਟਿਊਟ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਾਇਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾਈ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ PO स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਦੀ PO स्क्वायर ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ AO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर AO स्क्वायर माइनस AP स्क्वायर बिल्कुल। और ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੀ ਹੈ QO ਦੀ, ਉਹ ਆਈ ਸੀ OC स्क्वायर माइनस QC स्क्वायर, ਉਹੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆਪਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਮਸ ਕੱਟ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੈਕਿੰਡ ਔਰ ਥਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ OB स्क्वायर और OD स्क्वायर ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਦੋ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर इज इक्वल टू PD स्क्वायर प्लस PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस BQ स्क्वायर। ठीक है, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਕੀ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਛੋਟੀ ਦੀ PD ਲੈਂਥ ਕਿੰਨਾ ਇਕੁਅਲ ਹੋਏਗੀ QC ਲੈਂਥ ਦੇ ਇਕੁਅਲ। तो ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ PD ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ QC। ठीक है, तो ਆਪਾਂ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ QC स्क्वायर प्लस ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ AP ਹੈ ਲੈਂਥ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਆਏਗੀ PQ ਦੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ BQ ਹੈ ਉਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ AP ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਲੈਂਥ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਕੁਅਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। तो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ PO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਗੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ AP स्क्वायर और PO स्क्वायर ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ AO स्क्वायर। ਤਾਂ ਦੇਖੋ AP स्क्वायर और PO स्क्वायर ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ AO स्क्वायर। ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ AO स्क्वायर। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ QC स्क्वायर और QO स्क्वायर ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ OC स्क्वायर। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆ ਦੇਖੋ QC स्क्वायर प्लस QO स्क्वायर ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਊਗਾ OC स्क्वायर। और ये दोनों एडिशन ही आ गए और इत्थे क्या आ गया OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर। सो साडे कोल प्रूफ हो गया कि OD स्क्वायर प्लस OB स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। कितना प्रूफ किया सी सब तो पहला पर रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी लगाई कि सारे एंगल 90 डिग्री ने। फिर आप अपने वालों कंस्ट्रक्शन की है कि PQ लाइन ड्रॉ की है जो कि पैरेलल सी इस लाइन दे और इस लाइन दे भी पैरेलल सी। तो यह 90 डिग्री बनाऊगी उत्थे भी 90 डिग्री ही बनाऊगी प्लस जिन्नी लेंथ है होगी उन्नी लेंथ है होगी और जिन्नी लेंथ है होगी उन्नी लेंथ ही है होगी क्योंकि अपन पता है ना रेक्टेंगल ऑपोजिट साइड्स की होंदियां ने इक्वल होंदियां ने। तो अपने को BQ लाइन की आ रही है पैरेलल आ रही है। तो इस तरीके नाल AP लेंथ किंदे कोल आ गई BQ लेंथ दे और PD लेंथ किंदे कोल आ गई QC लेंथ दे। आपां की कीता सानूं पता है दो लाइन्स पैरेलल है तो अगर यह 90 डिग्री है तो यह भी 90 डिग्री आएगा, सिमिलरली यह भी 90 डिग्री आएगा। तो आप इन्होंने दोनों ट्राइंगल के उत्ते पाइथागोरस थ्योरम लाई सेम तरीके नाल इत्थे भी पाइथागोरस थ्योरम लाई। साडे कोल इक्वेशनस बन गया। फिर मैं देखा मैनू की चाहिए सी OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर। तो मैं वो वाली दो इक्वेशनस नूं ऐड कर दिया जिथे OB स्क्वायर और OD स्क्वायर सी। जितना ही ऐड किया अपने को आ चीज़ बची। फिर आपां पता है जी PD लेंथ है QC का इक्वल है तो PD की जगह आप QC लिख दिता। एंड इदा ही मैंने पता सी जी AP लेंथ है BQ का इक्वल है तो BQ की जगह आप लिख दिया AP। फिर सानू दिख रहा है कि QC स्क्वायर और OQ स्क्वायर नूं ऐड करके कितना बनता है OC स्क्वायर बाय इक्वेशन नंबर 4। तो आप उनकी जगह लिख दिता OC स्क्वायर। इदा ही सानू पता है PO स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर की बन जाता है AO स्क्वायर बाय इक्वेशन 1।
तो इन्हां दोनों ਨੂੰ जोड़ के भी लिख दिया AO² बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो साडे कोल की हो गया LHS किंदे कोल आ गई RHS। तो इस तरीके नाल आपां प्रूफ किया है। कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना, इत्थे कंस्ट्रक्शन की है PQ लाइन पैरेलल टू AB एंड PQ लाइन पैरेलल टू DC। और केड़ी थ्योरम यूज हुई है? थ्योरम 6.8। सो अगला क्वेश्चन ली अगेन फिगर सन दी हुई है। एक ट्राइंगल है ABC, लिखा हुआ है BL एंड CM आर द मीडियंस। तो ये BL की है मीडियन है। सानू मीडियन की डेफिनेशन पता है, एक लाइन सेगमेंट जो कि जिद्दे उत्ते कटे तो उन्हें इक्वल पार्ट्स ही डिवाइड कर देंगे। इट मीनस दिस लेंथ इक्वल टू दिस लेंथ, क्योंकि उन्हें बोला BL की है मीडियन। इस करके जी CA लेंथ है वो किद्दां डिवाइड होगी LA लेंथ ते LC लेंथ के इक्वल पार्ट्स विच। इदा ही उन्हें बोला CM भी मीडियन है। इट मीनस अगर यह मीडियन है तो आ दोनों लेंथ भी की होंगे आपस में इक्वल, क्योंकि मीडियन आप पढ़िया ट्राइंगल के जो आप इंट्रोडक्शन पढ़ी सी तो तुहानूं दस्सिया सी मीडियन की होंदा, एल्टीट्यूड की होंदा, परपेंडिकुलर की होंदा, तो उत्थों दी तुसीं देख सकते हो। नैक्सट उन्हें बोला A इज़ राइट एंगल ट्राइंगल। तो एक ट्राइंगल है ABC जिथे A की है राइट एंगल्ड है। सानू प्रूव की करना है 4BL² प्लस CM² इज इक्वल टू 5BC²। सो आप स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। अगेन सानू दिख रहा है एक ट्राइंगल जिंदे विच एक 90 डिग्री है, तो थ्योरम 6.8 वैलिड है। सानू पता है कि अगर एक एंगल 90 डिग्री होवे मतलब वो राइट एंगल ट्राइंगल है। इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। तो सब तो पहला आप की करते हैं, सब तो वड्डे वाला ट्राइंगल लैने आ, केड़े वाला ट्राइंगल ABC। सो आप प्रूफ स्टार्ट करते हैं। प्रूफ इन ट्राइंगल ABC सान दिता एंगल A 90 डिग्री। सो बाय थ्योरम 6.8 सो बाय थ्योरम 6.8 असी की लिख देंगे हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर मतलब BC दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। सो इन्हें लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। की किया मैं ये वड्डे वाला ट्राइंगल लिता आ वाला और मैनू दिख रहा सीगा इत्थे एंगल 90 डिग्री है। सो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो उसी अकॉर्डिंग साडे कोल आ गया BC² इज इक्वल टू AC² प्लस AB²। इनू लिख दिया आपां इक्वेशन नंबर 1। हुण आपां की चकदे आ छोटे वाला ट्राइंगल आ वाला केड़े वाला ट्राइंगल है CMA। सो आपां देखदे आ इन ट्राइंगल CMA अगेन एंगल A की है 90 डिग्री। सो फिर थ्योरम लगन ते नाल साडे कोल आ जाएगा CM² इज इक्वल टू MA² प्लस AC²। ठीक है, आपां की कीता आ ट्राइंगल चक्या, सानू पता है एंगल 90 डिग्री है। सो बाय थ्योरम 6.8 हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर किंदे कोल होगा बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही चीज आपां लिखी, बट सानू पता है इत्थे MA दी वैल्यू एक्चुअली की है पूरे AB दा हाफ ही है। सानू पता है MA दी वैल्यू की पूरे AB दा हाफ। तो आपां की करते इत्थे MA दी जगह लिख देने आ AB दा हाफ, क्योंकि सानू पता है कि CM की है मीडियन है AB दे, तो AB दो इक्वल पार्ट डिवाइड हो जाएगी। तो अगर तुहानू MA लेंथ चाहिए तुसीं किद्दां कर सकते हो पूरे AB दा हाफ करके। तो इत्थे आपां लिख देंगे CM² इज इक्वल टू AB अपॉन 2 द स्क्वायर प्लस AC²। एंड सॉल्व करके क्या आ जाएगा CM² इज इक्वल टू AB² बाय 4 प्लस AC²। सो इन्हें लिख देना इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से नाल हुण मैं केड़ा ट्राइंगल कंसीडर करूंगा आ वाला ट्राइंगल। ट्राइंगल का नाम की है BLA। सो इन ट्राइंगल BLA अगेन एंगल A सन पता है 90 डिग्री। सो बाय थ्योरम आप कह देंगे कि हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। केड़ा ट्राइंगल लिता असी आ वाला, इहदे विच सानू पता है एंगल 90 डिग्री है। सो हाइपोटेन्यूज दा स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वही चीज लिखी। हुण सानू पता है कि AC ली मीडियन का काम कौन कर रहा है BL, तो इहदा मतलब CL लेंथ और AL लेंथ आपस में इक्वल है। तो अगर तुसी AL लेंथ करना चाहते हो तुसी की कर दो AC दा हाफ कर दो। तो इट मीनस जिथे AL है उनकी जगह मैं की लिख सकता वा AC दा हाफ। तो इत्थे आ जाएगा BL² इज इक्वल टू AC² बाय 4 प्लस AB²। क्योंकि मैं लिखना सी AC हाफ उनका स्क्वायर, तो उत्ते आ जाएगा AC² थले 2 का स्क्वायर की हो गया 4। सो इन लिख देना इक्वेशन नंबर 3।
ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਫ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ BL ਸਕੁਆਇਰ ਔਰ CM ਸਕੁਆਇਰ ਐਡੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 2 and 3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਐਡ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 2 ਨੂੰ ਐਡ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ CM ਸਕੁਆਇਰ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ BL ਸਕੁਆਇਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ AB ਸਕੁਆਇਰ ਬਾਈ 4 ਪਲੱਸ AC ਸਕੁਆਇਰ ਬਾਈ 4 ਪਲੱਸ AC ਸਕੁਆਇਰ ਤੇ ਪਲੱਸ AB ਸਕੁਆਇਰ। ਸਾਨੂੰ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ कि सानू इस साइड ते की चाहिए BL स्क्वायर और CM स्क्वायर। तो मैं BL और CM वाली दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ ऐड। तो ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर बाय 4 प्लस AC स्क्वायर बाय 4 प्लस AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। तो ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ LCM ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ CM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर ਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ LCM ਲਿੱਤਾ 4 LCM ਆ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਊਗਾ AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर प्लस 4AC स्क्वायर प्लस 4AB स्क्वायर। ਤੁਸੀਂ एलसीएम लिता है सारे का, यही चीज़ बचेगी। हुण तुहानूं दिख रहा है एक AB स्क्वायर है और एक 4AB स्क्वायर है, जोड़ के की बन जाएगा 5AB स्क्वायर। इसी तरीके नाल एक AC स्क्वायर और 4AC स्क्वायर की बन जाएगी 5AC स्क्वायर। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਐਂਡ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਚੇਗੀ। ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ 4, ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆ CM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। 4 इधर भेज देने इतने आ जाएगा 4 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू इतों 5 कॉमन कर लेने इतने आ जाएगा AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। असी की किया ये 4 इधर भेज दिता और इन्होंने दोनों चो 5 की कर दिया कॉमन। हुण सानू दिख रहा है कि AB स्क्वायर और AC स्क्वायर ने जोड़ के की बन रहा है BC स्क्वायर बाय यूजिंग इक्वेशन 1। तो यह की बन गया साडे कोल BC स्क्वायर। तो साडे कोल प्रूफ हो गया कि 4 टाइम्स CM स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू 5 टाइम्स BC स्क्वायर। 5 टाइम्स BC स्क्वायर इतने BL सीगा, सॉरी C गलती ना लिखा है, इतने L है। आप दोनों इक्वेशंस ਨੂੰ ऐड किया बस, ठीक है। सो साडे कोल प्रूफ हो गया 4 CM स्क्वायर ब्रैकेट 4 कॉमन कट के CM स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर इज इक्वल टू 5 BC स्क्वायर। तो आप किहड़ा कंसैप्ट यूज़ किया, सानू दिख रहा सीगा एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो सब तो पहला मैं वड्डे वाले ट्राइंगल ते पाइथागोरस थ्योरम लगाई, तो उन्होंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। फिर मैं ट्राइंगल कंसीडर किया आ वाला CMA वाला, उत्थे भी एंगल A 90 डिग्री सी, उत्थे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई। बट मैंने पता MA जिहड़ा आऊगा वो AB/2 आऊगा क्योंकि CM की कर रही सी कमीडियन का काम कर रही सी। सेम तरीके दे नाल फिर मैं किहड़ा ट्राइंगल कंसीडर किया LBA वाला ट्राइंगल, उनके विच भी A 90 डिग्री सी, उत्थे भी पाइथागोरस थ्योरम लगाई। फिर जिहड़ी L है उनकी जगह मैं लिख सकता AC/2। क्यों? क्योंकि सानू पता है BL एक मीडियन का काम कर रही है। फिर आपां नूं देखा कि प्रूफ दे विच सानू चाहिदा सी BL स्क्वायर प्लस CM स्क्वायर। तो मैं दो इक्वेशनस नूं ऐड कर लिया क्योंकि इत्थे BL स्क्वायर और CM स्क्वायर की वैल्यूज दित्तियां होईयां सी। जदों ऐड किया LCM लिता, इत्थे आ गया 5AB स्क्वायर प्लस 5AC स्क्वायर अपॉन 4 चक के उधर भेज दिता, 5 कॉमन कर लिया। फिर आ गया AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। तो सानू पता है AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर की है BC स्क्वायर। तो साडे कोल की हो गया प्रूफ। तो इस तरीके नाल स्टूडेंट्स अज आपां थ्योरम 6.7 थ्योरम 6.8 ते थ्योरम 6.9 नूं यूज़ करके कुछ क्वेश्चन कीते ने। तुसीं इहनूं प्रैक्टिस जरूर कर लेना। आपां ट्राइंगल चैप्टर का टॉपिक अज ही खत्म करते हैं। धन्यवाद।